Okay, so let's put the focus over here, friends, everyone. Now, we were there into the features of the equity capital last time around. Our pure focus was from the company's perspective that if the company is there, then what would be the advantages and disadvantages for them if they raise the money through equity capital? Nowadays, all the business professions, startups are taking place in the company format. So, if the company will take place, obviously the equity will take place. As you people are aware about, the company may be private limited, may be public limited. People have a bit of a confusion about the public limited company and the public sector company. Both are two different things, my friend. Public companies are those companies whose shares are publicly traded in the market, in the exchanges, where there is no restriction for the transferability of the shares. But public sector companies are those companies where government institutions are interested and they have invested in those companies. तो कोई कोई लोग बोलते थे पब्लिक सेक्टर, बोला था पब्लिक, बेटा जो भी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो सब पब्लिक कंपनी ही है. पब्लिक सेक्टर कंपनी वो है जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर उनकी कोई इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखती है. तो ये दोनों के बीच में फर्क है जो हमें जानना चाहिए. अच्छा, we were there into the features of it. Let's go to the features quickly. First of all, as far as the maturity is concerned, they are permanent source of finance. सातों जन्म का रिश्ता बेटू, वो कहीं पे भी जाने वाले नहीं है. No one can force the equity shareholders to vacate. No one can no one can tell the equity shareholders to redeem their shares compulsorily, mandatorily. Yes, buyback of offer can take place, but buyback is an offer. Offer may be accepted, offer may be रिजेक्टेड. लेकिन किसी को तुम फोर्स नहीं कर सकते कि भैया एक कॉलर पकड़ के तेरा अब कोई काम नहीं है, अब तुझे कंपनी में आना नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते. Residual claim on the income. Once the everything will be distributed to the every stakeholders, to the employees in the form of salary and remuneration, to the government institution in the form of taxation, to all other people in terms of all such sort of an expenses, remaining money may be distributed to the equity shareholders in the form of dividend. I am using the words very carefully. May be distributed. उसमें भी कोई force नहीं है. Company do not have any fixed obligation to pay the dividend. They may declare the dividend, they may not declare the dividend, based on the needs of the people, based on the needs of the company for their future expansion and maintenance purposes. So they have got the residual. Residual माने क्या? अंत वाला claim. सबको पे करने के बाद. घर वाले होते हैं बाद में. वो शादी मैरिज बिया के फंक्शन में जाते हैं तो खाना पहले बाहर वालों को खिलाना पड़ता है, फिर जाके कुछ बचता है तो हमें मिलेगा. अच्छा, दूसरी बात इसकी ये है एडवांटेज, बहुत ज़्यादा बचेगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत कम बचेगा तो कुछ आ भी नहीं सकता. Residual claim on the assets as well, my friend, which is the अंत वाला claim on the assets. When the company will be shutting down, they have got the clear-cut priority to pay the money. Once the assets will be liquidated, company will be shutting down, the first priority to get the money will be of the secured liabilities. When I use the word secured liabilities, that means those people who have created some charge on your assets. The security may be of three types. One is the mortgage, another one is the pledge, and third one is hypothecation. जब लोन लेते हैं तब कोलेटरल देने पड़ते हैं, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे रखनी पड़ती है, तब जाके लोन मिलेगा सिक्योर्ड वाला, जिसका परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा कम होगा. अनसिक्योर्ड वाले भी मिलते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसके परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे. कुछ एनबीएफसी 30% लेती है. 30% पे कौन लोन लेता है भाई? 3 साल के अंदर लोन का अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी देते हैं भैया. अच्छा, mortgage means the security created on your immovable property, land and building, or the land and building putting as a combination. The property which cannot be moved from one place to another place is called as the immovable property. Home loan is the classic example of the mortgage. Loan taken on the building and premises is the classic example of the mortgage. Then it may be pledge.
Now in the pledge and hypothecation, the fundamentals are same, but only a minor modification is there between the two. Only a minor change is there between the two. आप वो ऑटो रिक्शा देखते हो तो नीचे कहीं पे लिखा होता है कि दिस व्हीकल इज ऑन हाइपोथिकेटेड बेसिस, कई बार लिखा होता है। अच्छा वो नहीं छोड़ो, व्हीकल लोन तो सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा व्हीकल लोन में ऐसा होता है कि आपने लोन ले लिया, फिर वो वाले बोलेंगे भाई तेरा इंस्टॉलमेंट खत्म होगा ना उसके बाद में व्हीकल तुम्हें मिलेगा, तब तक व्हीकल तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। मतलब हु विल गेट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी? The person who has taken the loan. Immediately when the person takes the loan, no, he will get the possession of the property because he will be enjoying the possession. That is the case of hypothecation, where the possession of the property remains with the person who has taken the loan. And in the pledge, the possession of the property remains with the person who has given the borrowings. गोल्ड लोन सुना है तो कहते गोल्ड पहले जमा करो भाई, वो पुरानी मूवीज देखी थी, वैसे तिजोरी में पहले गोल्ड रख लेते थे, फिर आपको पैसे देते थे, फिर आपने पैसे पे कर दिए, उसके बाद में गोल्ड आपको वापस देना है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे गोल्ड लोन अभी भी मिलती है। तो जहां पे आपका जो असेट है उसकी प्रॉपर्टी बोरोवर रखता है तो उसे हम कहते हैं प्लेज। दिस इज अ वेरी लेमन काइंड ऑफ एग्जांपल। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज वी हैव गॉट मॉर्टगेज, फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, वन इज प्लेज, वन इज hypothecation. Both are quite same, only the difference is of the possession. In pledge, the possession remains with the person who gives the loan, and in hypothecation, the possession remains with the person who has taken the loan. Is it clear? Now, the first right to get the money, once the assets will be liquidated, will be of the secured liabilities. These are the secured liabilities. Then those outsider liabilities which are unsecured in nature will get the second priority to get the claim from the assets. The third people who will get the third priority will be preference shareholders. उनके तो नाम ही प्रेफरेंस शेयर आता है, तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? They will always get the preference over and above the equity shareholders to receive the money from the company. And the ultimate claim, the eventual distribution will happen to equity shareholders. तो आपके पास बहुत भी पैसा हो सकता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत मिलेगा, अगर आपके पास कम पैसा रहेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत कम पैसा मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादातर वो लिक्विडेट करके डायरेक्टली कैश में भी पैसा दे सकती है, या तो फिर वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द मनी। देयर वाज वन कंपनी कॉल्ड मैजेस्को, इफ यू एवर हर्ड अबाउट इट। 1000 रुपए से सीधा 12 रुपए प्राइस पहुंच गए थे एक ही दिन में। द मेन रीजन वाज द कंपनी वाज गेटिंग लिक्विडेटेड। They did not have any properties to, only one property was left in the lower parallel premises. बाकी जितना भी यूएस वगैरह के उनके ऑपरेशंस थे वो सेल हो रहे थे। अब कंपनी के अंदर कुछ है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब वो लिक्विडेट हो रही थी तो उन लोगों ने लिक्विडेशन के पैसे डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 934 रुपए का आई गेस डिविडेंड था। तो बेटा मिल्क में से अगर तुम क्रीम निकाल दोगे तो मिल्क की क्या वैल्यू रह जाएगी? तो 1000 रुपए में से 12, 13, 14 रुपए में पहुंच गए। बट यस, इवन आफ्टर दैट वी हैड सजेस्टेड इट, फिर से 100 रुपए, क्योंकि हाँ 5, 10, 20% का सर्किट लग रहा था। अब उसका रीजन ये था कि उनके पास जो लोअर पैरेलल की प्रॉपर्टी थी ना, उसका वैल्यूएशन तुम गिनो तो पर शेयर वैल्यूएशन वाज समवेयर नियर टू 60-65 रुपीस। तो पीपल वर लाइक यार 60-65 रुपीस वैल्यूएशन तो अब भी है, लेकिन ये शेयर सेल हो रहे हैं 10 रुपए में 12 रुपए, तो सर्किट पे सर्किट लग रही थी। लेकिन फिर वो ओवर वैल्यू भी हो गया, 100 रुपए में परचेस करने की जरूरत नहीं थी। वैसे गुब्बारा होता है ना जिसमें उंदर सब आके कुछ खाने की कोशिश करते हैं, फिर वो गुब्बारा फट जाता है, फिर वो उंदर नीचे फंस जाते हैं, वही तो होता है रेट रेस में बेटा। Anyway, let's move ahead. Residual claim on the assets. Then the right to control the management and affairs of the company. मुझे हक है बेटा, यही लोग कंट्रोल करते हैं। Investors will always have the upper hand over the management of the company because they are the owners. They are the maibab of the people. They can pass the ordinary resolution or they can pass the special resolution in the annual general meeting. Yes, as per the articles of association, there may be some explicit powers given to the board of directors. Definitely, why not? But if the shareholders wants to change those board of directors powers, they can definitely change it by passing some resolution.
Even the clauses of memorandum of association, which are considered to be the fundamental constitutional document of the company, can also be changed even only with the permission of equity shareholders, either by passing the special resolution in the annual general meeting or by passing the ordinary resolution. Ordinary resolution requires 50% of the majority in voting. Special resolution requires 3/4 of majority in the voting. मोदी भाई साहब भी तो वही कर रहे हैं. वहां पे लोकसभा में तो किसी की जरूरत ही नहीं है उनको. हमारे पास ही मेजोरिटी है, किसी की हमारे पास ओपिनियन भी लेने की जरूरत नहीं. एटलीस्ट पहले बिल डिस्कस तो होते थे, अब तो बिल डिस्कस भी नहीं हो रहा है. वो अपोजिशन वाले बेचारे वहां पे लोकसभा में जाते हैं, उनको मालूम पड़ता कि आज ये बिल पास होने वाला है, उनको तब तक मालूम भी नहीं होता. लोकसभा में तो ऐसे पास हो जाते हैं बिल. यस, राज्यसभा में उनकी अभी तक मेजोरिटी नहीं है. राज्यसभा में अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पे भी बिल पास करना पड़ता है, तो वहां पे 2-3 पार्टियों का कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, लेकिन वो सब हो जाता है. Anyway, let's not go into the politics, otherwise some people will be like, इसके बारे में आपने बोला, चलो नहीं. They have got the voting rights, friends. Everything can take place only if equity shareholders are with you. अगर तुम साथ हो तो ही, otherwise कुछ नहीं हो सकता बेटो. Preemptive right. Now there is a very interesting thing to learn about the preemptive right. You might not be very much aware about it. Earlier in the Companies Act 1956, preemptive right stands for the subscription privilege. Which privilege? Subscription privilege. Right, to understand, you will have to think from the fundamental perspective first. Say a company has got, laptop is high on. Anyway, I'll give the example somewhere in the Excel file. Nothing to be worried about. We have got the Excel file too. Now this has been distributed today only, in which the classwork questions are being distributed. बोलेंगे examination? नहीं, classwork questions. Okay, say you have got 100 shares in a company, and this all are held by obviously the existing shareholders. Right now, company comes up with the new equity share issue, and say 20 more equity shares will be issued. Now, some people who had 40 number of shares in a company were basically holding the 40% power in the company, 40% holding power. To pass the ordinary resolution, they require 50% majority. तो उनको सिर्फ बाकी के 10% की परमिशन लेनी पड़ती थी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने में. अब नए वाले 20 शेयर इश्यू हो गए, तो कंपनी के टोटल शेयर कितने हो गए? 120. ये भाई साहब के सिर्फ कितने हैं अभी तक? 40. तो अब 40 शेयर है, वो भी 120 में से, तो फिर वो कितना परसेंटेज होता है? 30.33%. Now their control over the company is reduced, no? वो तो बेचारे सोए हुए थे, उनको तो मालूम भी नहीं था. इन लोगों ने नए शेयर इश्यू कर दिए और उनका कंट्रोल कंपनी से क्या हो गया? कम हो गया. तो ऐसा कोई कर सकते हो? ओनरशिप किसी की तुम कम कर सकते हो? तो Companies Act 1956 said that they had put some relaxation for the private company. They said, see, first there should be a right of the existing shareholders to get the new equity shares from whatever the new issue are coming across with, because they will be losing their control over a company, no? और उनका कंट्रोल तुम कैसे कंट्रोल कम कर सकते हो? आपका मैनेजमेंट का कंट्रोल वो कम कर सकते हैं, ओनर्स का कंट्रोल मैनेजमेंट कम नहीं कर सकते. So that right was called as the preemptive right. So if the new equity shares are taking place in terms of IPO or FPO, the first right to get the equity shares will be of the existing shareholders. That's called as the preemptive right. In the Companies Act 1956 earlier, the private limited companies were kept out of the purview of this preemptive right. Even the companies which were not completing the 2 years after the incorporation, after their registration to the registrar of the companies, were kept out of the purview of this. So only the public limited company which have incorporated and 2 years have already been elapsed were covered in that. But Companies Act 2013 is covering all the companies, including the private companies and also the public companies
for which the 2 years after the incorporation are not completed yet. So all the companies are now under the purview of this subscription privilege. Now, if the equity shareholders explicitly say in the annual general meeting that we do not have any problem if our holding can be diluted by passing the special resolution or the ordinary resolution, then there is no problem. No, ऑनर खुद आके बोल रहा है कि हमें हमारा राइट अगर थोड़ा सा कम होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. So any company which comes up with the new equity shares will pass the resolution in the annual general meeting that we are coming up with the new equity shares. Even you have right to purchase the shares. There may be a private placement too. That means the shares may be first given to the existing shareholders and then it may be distributed to the general public at large. But if the permission is taken explicitly in the annual general meeting, then there is no worry. तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. शेयर होल्डर्स खुद बोल रहे हैं कि हमारी होल्डिंग अगर डाइल्यूट होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. That is called the preemptive right, friends. Limited liability, that's the best advantage anyone will have in the company format. लेकिन यहाँ पे है ना कुछ लोग इसका मिसयूटिलाइजेशन डिसएडवांटेज लेने लगे थे, अनड्यू एडवांटेज लेने लगे थे. Owners have got the limited liability. Now, due to their reckless approach and relentless borrowings from the other people, their fraudulent activities, malified practices in a company may go into a liquidation, company may suffer the financial crisis. वो छूट जाते थे. हम तो ऑनर है, हमें तो सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी है, हमारा जो इश्यू प्राइस था हमने उतना प्राइस दे दिया है. तो फिर उन लोगों ने प्रॉफिट निकाल के अपना सब कुछ निकाल के वो प्रमोटर्स थे ना, वो कंपनी में से निकल जा रहे थे. राणा कपूर इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस. चंदा खोचर, आईसीआईसीआई बैंक, थोड़े से पैसे डाइवर्ट कर दिए थे अपने वीडियोकॉन के अंदर. देखो अब बेटा ऐसा हो रहा है कि वो तो अपने प्रॉफिट्स बुक करके निकल जा रहे हैं, तो अब क्या होगा? So now, since last 2 to 3 years, there was one insolvency and bankruptcy court initiated by the government of India. I must appreciate, that's a wonderful move. अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी के नाम पे तुम छटक नहीं सकते. Because of your reckless borrowings, because of your undue advantage of the powers, because of your fraudulent and manipulative practices, if the company is suffering, then promoters will be personally held liable to compensate the losses to the company. Insolvency and bankruptcy court, we have received lakhs of crores of rupees through this court now. Lakhs of crores of rupees has been recovered. That's a wonderful move. तो प्रमोटर्स को भी थोड़ा सा ऐसा कॉलर पकड़ने की जरूरत थी. जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा कर रही है वहाँ पे अप्रिशिएट करो, जहाँ पे नहीं करी है वहाँ पे नहीं करो. बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक. नो, यहाँ पे तो लोगों ने इंक्लिनेशन जोड़ के रखे. परमानेंट इंक्लिनेशन इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ डेमोक्रेसी, आई टेल यू. You should not never be permanently inclined towards any political party or any sort of celebrity or any ideal you have created. It must be a constructive criticism. If they are doing good, appreciate. In some of the things they are not doing good, criticize it. It's a constructive criticism. Everyone should follow the rational approach. तो ही उनके ऊपर पकड़ रहेगी. And newspapers and everything should always be little bit anti-establishment. आप क्वेश्चन किसको पूछोगे? जिनके पास पावर्स है. जो बेचारे पावर में नहीं है उनको क्यों क्वेश्चन पूछो? सर अरे तुम्हारा पर भैया, अब तो आप हो ना. ठीक है, चलो जाने देते हैं. सर यस प्लीज, समवन वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन हियर ऑनलाइन. सर वॉइस ग्लिच हो रहा है. सर वॉइस थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है. आई एम रियली सॉरी. सो अप टू व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड हियर मी? कैन यू जस्ट टेल मी मिस्टर तुषार? सर वॉइस इज ग्लिचिंग कंटिन्यूअसली. सर voice was glitching continuously. You people didn't tell me during this. So what should I do now? You wanna go? बहुत अर्जेंट है. ट्रेडिंग वगैरह तो कुछ करने नहीं जा रहे हो ना? ठीक है, आ जाइए. That sign is for a long term. Okay. Is it coming properly, Mr. Tushar, now?
Is it audible properly without any glitching? Mr. Harry, Miss Vidhi, is it coming properly? Okay, thank you so much, Mr. Harry. So अगर अब कहीं पे थोड़ा सा अटक रहा है तो बता, मुझे थोड़ा सा बता देना, ठीक है? जैसे तुषार भाई साहब ने, मेघानी भाई साहब ने अब भी बता दिया ना, वैसे मुझे बता दीजिए तुरंत ही, तो मैं रेक्टिफाई कर लूंगा. आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट. Well, let's go to the advantages and disadvantages of the equity capital. Next lecture will be on the cost of capital. We'll be finding the cost of equity of Reliance Industries Limited from the practical database. That's gonna be slightly off the track exercise, but I want to give you the practical exposure of this too. That's why we'll be doing it. So you may bring the laptop if you want to do it practically, hands-on experience in your laptop. Advantages, permanent sources of finance. Absolutely. आपको बीच में पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है. लोन अगर 5 साल की अवधि लेके आती है तो 5 साल के बाद कैसे ही पैसे वहां पे इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पे करने हैं. ये तो परमानेंटली है, आपको रिडीम करने की कभी आवश्यकता है ही नहीं. तो आपको पैसे इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. वैसे भी डिबेंचर्स में भी होता है, द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्योंकि अगर आप अंत पे 5 साल के बाद बोलोगे अब तो हमारे पास रिडीम करने के लिए कुछ पैसा है ही नहीं, तो कैसे चलेगा? तो अभी से आपको थोड़ा थोड़ा ईयरली कुछ रिडीम करते रहना है. तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स आर कंपल्सरीली टू बी क्रिएटेड. बट वैसा इक्विटी में कोई रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की सालाना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिडीम करना ही नहीं है. हाँ, उन लोगों को अंदरों अंदर अगर ट्रांसफर करने हैं तो वो कर देंगे. पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सचेंज में जाके सीधा डीमेट से ट्रांसफर कर देंगे. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो तो भी कुछ शेयर्स के ट्रांसफर के कुछ रूल्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से. तो उस रूल्स के हिसाब से आपको नया वाला मेंबर ढूंढना है, बाकी सब मेंबर्स को कन्विंस करना है कि भैया ये वाला नया वाला शेयर होल्डर होगा. तो प्राइवेट लिमिटेड में भी रूल्स को फॉलो करते हुए आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो. नो कंपल्सन टू पे द डिविडेंड. Absolutely, even in the case of profits, company may say no for the dividend. Obviously, nothing to be worried about. No obligation on company to redeem it. These are few advantages. No fixed obligation to pay any sort of a dividend. Disadvantages are irredeemable. Once they are in, they are permanently in. जो एडवांटेज है वही क्या हो गया, डिसएडवांटेज. आपको सिर्फ 5 साल के लिए पैसे चाहिए थे स्टार्टअप में, लेकिन वो तो परमानेंटली आ गए. फिर ऐसे ऐसे इंटरफियरेंस करेंगे, उंगली करेंगे हर एक चीज़ों में. चलो बताओ, ये दिखा रहा है तुम्हारा बैलेंस शीट क्या है, चलो दिखाओ, क्यों प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो डिविडेंड की तरह. वो परमानेंटली कुछ ना कुछ इंटरफियरेंस करते रहेंगे. दे आर परमानेंटली इन. आपको सिर्फ 10 साल के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए आ गए. जब तक उनका मन नहीं हुआ कि हमें ट्रांसफर करना है, तब तक उन्हें कोई निकाल नहीं सकता. ऑब्स्टेकल्स इन मैनेजमेंट. They will keep on creating the obstacles. Management is different from the ownership. We are aware about it, right? Company has got the separate, different legal identity. ऐसा यूं पैर फैलाते सोफे में आके बैठेंगे, ये कर दो, वो कर दो, ये बदल दो, ये बदल दो. अरे भैया, तुम्हें नॉलेज है कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बेचारे को सेल्स की ज्यादा नॉलेज होगी कि वो शेयर होल्डर जो वहां बाहर बैठा हुआ है उसको नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी इंटरफियरेंस करते हैं. Anyway, may lead to speculation, because we know that how the trading takes place in India. Speculation stands for without any news or without any sort of constructive research, you may indulge into a trading practice. सर, हमारे तो पंडित जी ने बोला था कि आपके राशि में ना अब धन प्राप्ति होने की संभावना लग रही है, तो हमने शेयर परचेस कर लिया. सर, हमारी मम्मी तो बोली तो रेड कलर हमारे लिए शुभ है, तो उन कंपनी के लोगों के अंदर रेड कलर आता है, तो हमने शेयर्स परचेस कर लिए. मेरा फ्रेंड्स है ना, कभी भी मेरे को मिसगाइड करता ही नहीं है, तो उसने बोला तो मैंने ले लिया. मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास जैसे यू इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है. कैसे? यू इनसाइड अंदर की इन्फॉर्मेशन आ रही है. ये शेयर परचेस करना मांगता है, मतलब करना ही मांगता है. सर देखो 5% की सर्किट कैसे लग रही है, तो अब मैं भी परचेस करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द वैल्यूएशन वुड बी. ऐसे लोग यहाँ पे करते हैं. तो स्पेकुलेशन हो सकता है. रूमर्स बहुत स्प्रेड होती है इक्विटी कैपिटल में.
कंपनी को मालूम भी नहीं है, बैठे बैठे बेचारे के प्राइस कम हो रहे हैं। वहां पे से डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने ईरान के ऊपर कुछ हमला कर दिया, हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्राइस यहाँ पे 5% 10% गिर जाते हैं। अब कोई करे तो करे क्या, कोई बोले तो बोले क्या। Yes, every company will have operators to handle the prices. Unnecessary fluctuations ना हो, इसके लिए ऑपरेट करते हैं। अब ये कोई लीगल है कि इलीगल है कि उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक के पास, और यही ट्रेडर्स का काम होता है। ट्रेडर्स वही देखने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर कौन सी दिशा में जा रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत कैपिटल है। कितना कैपिटल है? बहुत कैपिटल। एग्जैक्टली। वो हर्षद मेहता भाई साहब का तो करियर ही वहां से बना, फ्यूचर रिटेल का। यस, रिलायंस कोई कंपनी को एक्वायर करने वाला है नेदरलैंड में टेलीकम्युनिकेशन की, तो उसके शेयर्स 5% डाउन हो गए। अब क्या करें बताओ। देखो मार्केट में लोग कैसे लेने वाले हैं न्यूज़ को आपको मालूम नहीं है। इट लीड्स टू स्पेक्यूलेशन। हमें मालूम भी नहीं है, बैठे बैठे प्राइसेस और रूमर्स तो बहुत स्प्रेड होती है। आप कुछ नए लोगों से मिलते हो तो लोग, अरे इसको लगता है, हमें तो लगता है कि ये लोग है ना कंपनी को सेल करने वाले हैं। तुम्हें कैसे लग गया भाई? ऐसे हरिश्चंद्र की तरह भगवान ने आके तुम्हारे सपने में बताया कि ये कंपनी सेल होने वाली। हाँ हाँ, लेकिन रूमर स्प्रेड हो गई, यहाँ पे बैठे बैठे अदानी ग्रीन्स के लग गए बेचारों के। Now, people were pessimistic about Mr. Donald Trump in terms of renewable energy. So, the moment the chances of Mr. Biden to win the elections were getting stronger, वहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के भाव बढ़ने लगे। अदानी ग्रीन्स भी उसमें से एक था। तो बहुत सारे रिन्यूएबल कंपनीज के भाव बढ़ने लगे, बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। He was very environmental friendly because that's what the perception was among the investors. तो पब्लिक कैसे लेने वाली है हमें मालूम नहीं है, तो इट मे लीड टू स्पेक्यूलेशन। नो फिक्स्ड डिविडेंड इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज फॉर अ कंपनी समटाइम्स, बिकॉज कंपनी इज थ्राइविंग एंड सर्वाइविंग टू ग्रो कंटिन्यूअसली, राइट? उनके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। ज्यादातर कंपनी प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए ही काम करती है, प्रॉफिट्स कम करने के लिए कौन काम करेंगे? तो जैसे ही प्रॉफिट्स बढ़ते थे ये मुंह उठा के आ जाएंगे, हमारे डिविडेंड इंक्रीज कर दो, हमारे डिविडेंड इंक्रीज कर दो, हमारे डिविडेंड इंक्रीज कर दो। अब लोन वाले, आपने कभी सोचा है कि आपने ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिए तो बोले कि यार ये तो बहुत प्रॉफिट अर्न करते हैं, चलो इंस्टॉलमेंट के पैसे ज्यादा दे दो, इंटरेस्ट का रेट 8% से 9% कर दिया। इनका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, तो कंपनी विल ऑलवेज बी अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस व्हिच मे गेट इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Issue of equity shares dilute the holding of current owners, irrespective of whatever the powers are given to the existing holders in terms of the privilege subscription. Some percentage of the dilution will always take place with the new issue of shares. कुछ तो कंट्रोल उन्हें कम होने हैं, मतलब कि वो नहीं है, डाइल्यूट होता ही है। इसीलिए तो ये लोग बाईब्लैक करते हैं प्रमोटर्स का होल्डिंग फिर से बढ़ाने के लिए। ऐसा नॉर्मल पब्लिक ने बोलेंगे कि आपके शेयर्स है ना हमें वापस दे देने हैं, तो बेचारी नॉर्मल पब्लिक आके वापस कर देगी, उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग बढ़ गया। उनका शेयर्स नहीं बढ़े, शेयर होल्डिंग बढ़ गया, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैव डिक्रीज्ड। There may be a different reasons too that company wants to sell the positive signal to the investors. Now, buyback is often considered as a sign of undervaluation of the shares. It's been historically observed that the prices have got up once the buybacks are issued by the company. So there may be various other reasons, but new issue will always dilute some percentage of the holding of existing shareholders. वो तो पक्का है, उनको करना भी पड़ेगा। अगर एक्सपांड करना है, नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना है, तो वो वैसे तो नहीं आ जाएंगे, उनको परसेंटेज शेयर होल्डिंग देनी पड़ेगी। अब रिलायंस को अगर टाई अप करना है फेसबुक से, उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए उनकी 5G वगैरह की, वर्चुअल रियलिटी वगैरह की, तो फिर उनको परसेंटेज होल्डिंग भी देना पड़ेगा बिल्कुल। वैसे ही उनको गूगल को भी परसेंटेज होल्डिंग देना पड़ा, और अच्छे खासे भाव पे दिया यार। जब कोरोना एकदम पीक पे था उस समय पे सेल किया। ज़्यादातर लोग अच्छा वैल्यूएशन रिसीव करने के लिए जब मार्केट्स अपसाइड होते हैं तब सेल करते हैं।
इन लोगों ने मार्केट जब टूट रहे थे, रिलायंस के भाव 1,1200 पे चल रहे थे, उस समय पे फेसबुक को 1500 रुपए पे बेचे। एनीवे जाने तो दैट्स अ वेरी, व्हाट शुड आई कॉल, अ ब्रेव मूव। कोरोना के एकदम पीक पे फेसबुक को सेल किया था। Cost of equity capital is always high because they take the risk. We know the fundamental theorem of the finance: higher the risk, higher the chances of return. Equity shareholders takes the risk of non-payment of dividend. Equity shareholders takes the risk of non-payment of capital as well. At the time of liquidation, they may get the capital back, they may not get the capital back. Equity shareholders takes the risk of fluctuation in the market. They takes the risk of speculation in the market if the company is publicly traded. So they take so many type of a risk. So obviously their expectation will also be very high. Their expectation may be in the form of dividend or it may be in the form of incremental market price. तो अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी तो ऑब्वियसली फंडामेंटली उनकी सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अच्छी होती है। तो इन्वेस्टर्स आर रेशनल इनफ टू आइडेंटिफाई दिस अपॉर्चुनिटी। मार्केट में उस कंपनी के प्राइजेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली डिविडेंड पे ना करने से प्राइजेस बढ़ सकते हैं। ये फंडामेंटल थॉट है, लेकिन कोई कोई लोग सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंपनी के भाव उसी टाइम पे आगे बढ़ेंगे जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, अदरवाइज वो कंपनी के भाव बढ़ते नहीं हैं। अगेन, so that's entirely up to the investors and perception, but cost of equity capital will always be high in comparison to all the other sources of finance. Dividends are paid from the profit after tax, while interest on other finance is tax deductible expense. Try to understand this, friends. Say this is your P&L account. This is your P&L account. Here you have got the sales of 100 rupees. Here you have got the expense of 50 rupees. How much? In the first alternative, you are opting for the debt. And in second alternative, you are opting for equity. So when you take the debt, how the profit and loss statement looks like. Say you are supposed to pay 10 rupees of interest. So you pay the interest of 10 rupees. So your profit before tax will be how much now? 40. Say 30% is the tax bracket in which this company is falling. So tax will be paid at 30%. So it will be how much? 12 rupees. So profit after tax will be how much? 28, which may be transferred to reserves and surpluses in the balance sheet liability side. Undistributed profit is regarded as the retained earnings, forms a part of reserves and surpluses in the balance sheet. Yes or no? Let's consider a scenario where equity is issued. Sales is how much? 100. Expenses are how much? 50. Material, every sort of a direct and indirect expenses. Now interest do not get the deduction, dividend do not get the deduction as you are getting in the interest, because dividend is not at all an expense. It is the appropriation of the profits. What is it? Appropriation of the profits. It is distributed after profit after tax. It is not an expense. Obviously, when you are preparing the partnership accounts too, you used to call drawings as the money withdrawn by the partner, and it was given the effect in the partner's capital account, not in the profit and loss account. You can recall it. तो ओनर्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते वो एक्सपेंस है। कोई बंदा अपने बिजनेस में से पैसा उठाता है तो उसे तुम एक्सपेंस कह सकते हो। तो डिविडेंड है वो एक्सपेंस नहीं है, तो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 50. नाउ यू पे द 30% इनकम टैक्स ऑन इट, सो टैक्स वुड बी हाउ मच? 15 रुपए। Now profit after tax will be how much? 35. From that, say the dividend will be paid 10 rupee. So the amount that will be transferred in reserves and surplus will be how much? 25. Earlier in the debt case, you were transferring how much?
28 rupees in the reserves and surplus. Now you are transferring how much? 25 rupees. That means if you have the interest, you do the savings in the tax. आपको टैक्स में से सेविंग्स होगा, जितना आपका खर्चा बढ़ेगा उतना प्रॉफिट कम होगा, जितना प्रॉफिट कम होगा तो उतना टैक्स भी तो कम होगा, और जितना सेविंग्स करते हो आप टैक्सेशन में वो अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। दूसरे वाले केस में सिर्फ 25 रुपए ट्रांसफर होते हैं, पहले वाले केस में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 28 रुपए। पहले वाले केस में 10 रुपए हमने इंटरेस्ट दिया है लोन वालों को, जहां से हमने लोन ली है। दूसरे वाले केस में 10 रुपए का हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन ये दोनों के कारण आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में इंपैक्ट आ रही है। Now, because of the fact that dividend is not a tax deductible expense, it is a costly for you from the company's perspective, क्योंकि आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो टैक्स के अंदर कुछ भी। डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो एक्सपेंस कहीं पे गिना ही नहीं जाएगा, बिकॉज इट्स द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो दैट्स द डिसएडवांटेज। लेकिन अगर आप 7% पे डेट लेते हो ना, तो उसके कारण आप टैक्स में भी सेविंग करते हो। तो रियल कॉस्ट ऑफ द डेट इज नॉट 7%, it is after tax. So from 7%, if you reduce the impact of taxation, say 30%, so you will write the formula like 1 minus tax rate. So 1 minus tax rate is says 30%. So 7 multiplied by 0.7, so it will be 49. So it will be 0.049. So it will be 4.9% effective cost of debt for you, because rest is the savings done by you. So if 7% is given to you, you reduce the impact of tax from it. Nothing to be worried about. We will have such kind of a questions in future to come, where the taxation impact will be removed from the cost of debt. We'll see that. Cost of equity share capital will always be high for the issue. Say you want to take the loans and borrowings from the financial institution, आपको सिर्फ दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और अगर आप मुकेश अंबानी हो तो फिर वो आपके दरवाजे खटखटाएंगे, आपको तो दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं है। इफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी स्ट्रांग, वो आपके लोन के लिए यहाँ पे आपके घर पे आएंगे। आपका जैसे ही फाइनेंशियल कंडीशंस वेरीफाई हो जाएगा, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, आपके स्टेटमेंट्स अच्छे दिख रहे हैं, उनके फाइनेंशियल एनालिसिस में आप एक साउंड डेट प्रूव होते हो, तो आपको तुरंत ही लोन मिल जाएगा। विद इन जस्ट 2 to 3 days द लोन विल बी सैंक्शनड एंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसमें भी सिक्योरिटी ऑब्वियसली चाहिए। इफ इट इज अ सिक्योर्ड लोन तो आपको सिक्योरिटी चाहिए, और अनसिक्योर्ड लोन में भी आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है इफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑन पेपर इज वेरी स्ट्रांग। दैट डिपेंड्स ऑन द मॉडल विच बैंक्स आर फॉलोइंग फॉर इशूइंग द लोन्स एंड बोरोइंग्स। लेकिन इक्विटी में इश्यू करना हो तो, अगर पब्लिक लिमिटेड की तो बात करो ना, तो पहले तो सेबी के पास जाओ, हमें आईपीओ करना है। सेबी बोले कि ये लेके लाओ, वो लेके आओ, ये फुलफिल करो, वो फुलफिल करो, कितना सारा डॉक्यूमेंटेशन। सेबी ने आईपीओ के लिए हाँ बोला, फिर आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बोलोगे देखो देखो सेबी ने है ना हाँ बोल दिया, तो अब हम नया वाला इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। उससे पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर है तो उनकी परमिशन लेनी है एनुअल जनरल मीटिंग में कि हम ऐसा कोई आईपीओ लाने वाले हैं। उसके बाद में आईपीओ के लिए आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। जब आप आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखते हो तो वहां पे लिखा होता है कि एक्सिस कैपिटल इसको हैंडल कर रहा है, या तो फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसको हैंडल कर रहा है। दे आर बेसिकली द मर्चेंट बैंकर्स विल बी हैंडलिंग द एंटायर आईपीओ। आईपीओ को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों से पैसे इकट्ठे करना, अलॉटमेंट का स्कीम निकालना, कौन से अमाउंट पे आईपीओ को इश्यू करना। ये जोमेटो का 76 रुपए क्यों आया? आपके दिमाग में ख्याल आया कि वो 50 रुपए पे इश्यू क्यों नहीं किया? क्यों 76 पे ही एक शेयर को इश्यू किया उन लोगों ने? लिस्टिंग गेन हुआ वो बात अलग है, क्यों 110 रुपए पे नहीं किया? तो किसने नक्की किया कि 76 पे होना चाहिए? There comes the mathematical modeling through which the valuation takes place. Over there to the time value of money will be forming a part of the calculation. The discounted cash flow technique is used to know the valuation of the business, the valuation of the security. हाँ बेटा, तो बेटा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करोगे तो वो सेवा करने के लिए तो है नहीं, परसेंट चार्ज नहीं करेंगे कमीशन वगैरह। अंडर राइटर्स को भी अपॉइंट करना पड़ेगा ना,
अंडर सब्सक्राइब होगा तो अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो वो भी पैसे लेंगे। बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितनी फॉर्मेलिटीज बढ़ेगी उतना कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, समझने वाली बात है बेटा। अच्छा, ग्रे मार्केट में भी आपको पब्लिक में पॉजिटिव परसेप्शन फैलाने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। बेसिकली लिस्टिंग के गेन्स डिपेंडेंट होते हैं कि ग्रे मार्केट के अंदर कितना प्रीमियम चल रहा है। अभी जब आईपीओ आते हैं उससे पहले लोग उसके बारे में कितनी बातें कर रहे हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को आपको बिल्ड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके वो पूरा आपको चलाना पड़ता है, आपको पूरा प्रोसीजर। फेसबुक का जब आईपीओ आ रहा था ना, उस समय पे उन लोगों ने एक पूरा कैंपेन चलाया था, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को मिले थे थ्रू द रोड शो। इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और वो रोड शो करने के लिए खर्चा नहीं लगेगा, पब्लिक के अंदर पॉजिटिव परसेप्शन आपको फैलाना पड़ेगा आईपीओ के लिए, क्योंकि शुरू में जो लिस्टिंग गेन मिलता है ना, उतना लिस्टिंग गेन फिर बाद में नहीं मिलता। समझ लो तुम्हें 100% इसका लिस्टिंग गेन मिला, कभी देखा है कि शेयर्स के प्राइस 100% लिस्ट के बाद बढ़ गए? बहुत कम केस में बढ़ते, फिर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको शुरू के अंदर ही पब्लिक में पॉजिटिव परसेप्शन फैलाना बहुत जरूरी बन जाता है। तो इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा बेटा। अच्छा, उसके भी बाद में आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे, प्रोस्पेक्टस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसमें भी सेबी बोलेगा कि इसमें ये कम है वो कम है, आपने जो प्रोस्पेक्टस के अंदर डिटेल डाली हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। शेयर्स को अलॉट कर दिया, अलॉटमेंट के बाद भी कोई कोई लोगों की क्वेरीज आएगी, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। So the cost of issue in the equity shares will always be higher in comparison to the debts and borrowings. उसमें तो आपको साइन करने हैं पेपर्स वगैरह, एक दो बार मुलाकात होगी और वैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो गया, दूसरे दिन तो आपके लोन के खाते में पैसे जमा भी हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ इश्यू विल ऑलवेज बी वेरी high. These are the various advantages and disadvantages of the equity capital. Next session will be practical in nature, where we'll be finding the cost of equity. There are various mathematical models to find the cost of equity for the company. We'll see that in the next session. Thank you so much. I have taken 5 minutes extra for you. Time पे खत्म किया है. Thank you so much. Please put your enrollment number as a mark of your attendance for the day. That's it from my side. Yes, Mr. Tushar, you wanted to raise something. Yes, please. I'm really sorry. I'm looking at it right now. ये हैंड रेस किया कि नहीं किया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और बता रहा हूं तो बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। हो गया ना सबका अटेंडेंस इधर से?